ان کے 10 بیٹیاں تو 30 لاکھ ان کو 10-3 کروڑ میں دیا ہوگا ایک بچے سے. وہ جو اتنے سارے یہاں پہ دو تو ادھر سے چھوڑ رہے ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ہم سب کے رشتے میں لکھی جاتی ہیں. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے. ہم نے نہ تو اللہ کو دیکھا نہ اس کے نبی کو دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہے حدیث بھی ہے نا ایمانی ایمان ہے اللہ کے فرشتوں پہ. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اس فرشتوں کو دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے. اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ حق اور سچ ہیں. وہ کتنی حق اور سچ ہے ساری رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان تھے اور مسلمان ہو کر لگنے مسلمان ہو پھر لگے پیشے سے چور تھے مسلمان ہونے سے پہلے چور تھے. اب وہ آئے لگے تو حرام سے بچے گا اللہ اسے حلال کا بننا. اب بات نہیں چلے گئے اب رات میں ہو جائے تو ایک آدمی اور میں نے اپنی رات کو سننے لگی جہاں بھی کوئی چوری کرنے کے لیے وہ گھر کے اندر ہی عورت تھی اس کا سامان وامان باندھ دیا. پھر جن کے اندر اللہ کے نبی کی بات آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرام سے بچے گا اللہ اسے حلال کا بننا ہے. کتنی دنیا مسلمان کی زندگی تو سارے بڑے بڑے سامان کو چھوڑ دیا جو حرام سے بچے گا اللہ اسے حلال کا بننا ہے. اس کے بعد آیا کھانا وانا کھانے کے لیے وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرام سے بچے گا اللہ سے حلال کا بننا ہے. تو کھانے کو بھی چھوڑ دیا تو وہاں سے واپس چلنے لگے. جب چلنے لگے تو عورت کے اوپر نگاہ نہ ہوئی, عورت تو شیطان نے دل کے اندر یہ ڈالا یار کچھ دے کر بلا لیا آج کی بات خراب ہو گئی اس سے اپنی رسم خالص پوری کر لی. تو عورت کی طرف چلے پھر دل کے اندر یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرام سے بچے گا اللہ سے حلال ہوگا اور چھاڑ کے آ گئے اور آگے جا کے چلا لے گئے. تو وہ عورت آئی اللہ کے نبی کے آگے چلے گئے اللہ کے نبی رات میرے ساتھ ایسا ہوا کوئی آدمی میرے گھر میں گھسایا شوگر کا اس نے یہ کیا اور پھر وہ میری عزت کا حملہ کرنے والا تھا بس کیسے وہ چلا گیا. آپ میرے نکاح کا انتظام رکھیں کہ مجھے آپ میرا نکاح ہے. اللہ کے نبی نے ان کو پوچھا کہ نکاح کے لیے تیار ہو کوئی شادی بھی چوری نہیں ہے تو وہاں سے حال لگا کہ تیار. وہ ساری چیزیں اللہ کا حلال ہے اللہ کے نبی کی بات ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ جو حرام سے بچے گا حلال ہے. ہمارے بزرگوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ مال دینے کے لیے حضرت اتنے پیسے آپ رکھ لیجیے منع کر دیا تو لوگ جھوٹیوں میں رکھ کے چلے کہ کسی طریقے سے میرا مال اللہ کے گھر میں لگے. تو یہ کام ہے چھوٹا موٹا کام یہ چیز آپ کر رہے ہیں. ہماری سارے کی عبادتیں اس کے مقابلے کو چھوٹی دکھائی دے گی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ایسی مسجد اللہ اس کے رسول سے ذکر کرو ایسی مسجدوں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً اللہ کے فرشتوں میں چاروں طرف سے گھیر رکھیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے تانتا لگا لیتے ہیں ایک دوسرے کو بجاتے ہیں کہ آؤ ادھر دیکھو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. پھر سے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تو سب کچھ جانتے عالم وغیرہ. تو جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لوگ پوچھتے ہیں ان سے کہ کہاں سے آ رہے کھانے کے اللہ کو جانتے ہیں. وہ فرشتے بتاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہے گا میں سب کی مقصد جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنی فضائل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تم گواہ رہے گا میں نے سب کی مقصد کرنا ہے. اور پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی نیکیوں ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اگر آج تک میں نے 1 کروڑ گناہ کیے ہیں تو اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور نیکیوں سے بدل دیں گے. اب جب اس مجلس سے اٹھیں گے تو 1
करोड़ नेकियां मेरे नाम आमाल में लिखी हुई हैं। तो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें यकीन है अल्लाह, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो दुनिया के अंदर 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह 1 के 10 अता फरमाएगा। बात तो भी एक ही है। और मैं तो बार मतलब अपने यार दोस्तों को कहता भी कि अल्लाह का करोड़ रुपया आता है, क्योंकि यकीन है इस बात पर, हम यकीन पे काम कर रहे हैं। वरना जो जाहिली तौर पर हमें दिखाई नहीं देता, हम नमाज पढ़ते हैं, जाहिली तौर पर उसका फ़ायदा दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है। जैसे बद परहेज़ी का जिस्म पर असर होता है और परहेजगारी का जिस्म पर असर होता है। अगर कहीं जख्म हो जाए, डॉक्टर कहते हैं पानी नहीं लगाना, और हम पानी ना लगाएं तो हमें असर दिखाई देता है कि बहुत जल्दी ठीक होता है, और बद परहेज़ी करें तो फिर वो ठीक होता दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कह गया तो मैं पानी में क्यों बोलिए, इसीलिए ठीक नहीं होता। इसी तरह गुनाह और नेकी का जिस्म पे तो कोई असर दिखाई नहीं देता, लेकिन रूह दागदार हो जाता है, उसकी रूह पे उसका असर दिखाई देता है। इंसान नेक अमल की कोशिश करता है। हम में तो कौन सा ऐसा होगा जो ये ना चाहता हूँ कि यार मैं 5 वक्त की नमाज ना पढ़ूं, हम सब चाहते हैं। लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से कि हम हर वक्त इतने गुनाह करते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का हक मारते हैं, और आज के टाइम में तो ये सब करने की जरूरत नहीं। इंसान तन्हा है ना, तन्हाई में भी गुनाह कर रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आ गए, फ़ोनों का इस्तेमाल हम सब ऐसे करते हैं कि तन्हाई में भी गुनाह करें। मतलब बुजुर्गों ने लिखा है तन्हाई में खामोश रहना ये बोलने से, इबादत करने से ही बेहतर है। तो जब इंसान तन्हा बैठा हो और तन्हा बैठ के फिर अल्लाह की सिफातों में गौर फिक्र करे, अल्लाह ने जो दुनिया के अंदर चीज़ें बनाई हैं उनमें गौर फिक्र करें। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि तन्हाई में भी गुनाह कर रहे हैं। अब जब हम गुनाह करते जाते हैं तो हमारे दिल शिया हो जाते हैं, दिलों के ऊपर एक तारीफ आ जाती है, जिसकी वजह से नेक अमल करना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं चाहता कर लेना। अब जैसे इसकी मिसाल ये समझे, हमारी जितने भी साथी हैं जो आने वाले, किसी ने ये भी सोचा होगा कि यार हम नहीं जाएंगे मीटिंग में, जाने का इरादा पूरा किया होगा, लेकिन कहता है चलो चले जाए अभी थोड़ी देर में चले। लेकिन अगर एक फिल्म देखने जा रहे, फिल्म के टाइम में 11:40 का, तो ये समझो 10:30 बजे वहाँ मिलेगा जरूर, शायद घुटने में कुछ में बोल रहा है, गाली गाली करो का शैतान हमारा पूरा दुश्मन हर बुरे काम में वो हमें आसानियाँ दिखाते हैं, हर अच्छे काम में मुश्किलें दिखाई देते हैं। जाके क्या करेगा, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चले जाने फिर आज बारिश हो रही, हर बार तो जाते ही है, आज नहीं जाएगा तो क्या हो गया। तो कोई भी कुछ कहे तो अगर कोई कुछ कह देगा तो जाना छोड़ देगा, अगर जाना छोड़ रहा कोई तो जाने का जीतेगा। शैतान हमें हर अच्छे अमाल से रोकता है। हम सबको चाहिए सब चीज़ों में जबकि कोई खैर का काम है सामने, तो अपने कामों को छोड़ करके ही जाना चाहिए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तुम जमातों में इसलिए जाना नहीं चाहते हो कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे काम की, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे। तो कोई 2 महीने के लिए जा रहा है, कोई 4 महीने के लिए जा रहा है, और हम तुम्हें इसीलिए भेजना चाहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे। अल्लाह का काम करने से दुनिया के अंदर एक मिसाल भी ले सकते कि जिसने अल्लाह का काम किया हो और उसके काम बिगड़ गए। ऐसी मिसालें तो मिल जाएंगी कि आदमी पहले बहुत गुनाहगार था, परेशान था, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू किया, इबादतों में लग गया, परहेजगार हो गया, मुस्तकी हो गया, सुन्नतों का पाबंद हो गया, अब उसकी ज़िंदगी पहले से बेहतर है, दिल को उसके सुकून है। ये मिसालें तो मिल जाएंगी। अगर शैतान सामने ये दिखाए ना कि यार तू जाएगा तो तेरा ये काम का नुकसान होगा, मैं यकीनन अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ तो उसका वो काम का नुकसान नहीं होता। अगर वो ना आए तो यकीनन उसके काम का नुकसान होता। आप लोग ये देखें, हम सब ये देखें कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीते हैं, ना हमारी नमाज़ों का पता है। हम में से जो कुरान करीम पढ़े हुए, कुरान करीम पढ़े हुए किसी में 2 महीने हो गए होंगे, 3 महीने हो गए होंगे, हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी करते, उसके बाद भी अल्लाह ने लोगों की कितनी खूबसूरत ज़िंदगी दे रखी है, पूरा शरीर बिल्कुल जो सही काम कर रहा है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जो लोग बीमार हैं उनसे पूछ के देखो 3-3, 4-4 महीने को हॉस्पिटलों में लेटे हुए। दौलत की कमी नहीं है, दौलत बेशुमार है, लेकिन जब इंसान बिल्कुल आजिज़ आ जाता है ना, तब उसे समझ आता है कि वाकई करने वाला अल्लाह है।
गुनाहगार से गुनाहगार, बदकार से बदकार इंसान की जो वो बीमार हो जाए फिर वो नेक लोगों की तरफ रुजू हो जाता है, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो। वो भी जानते हैं कि शिफा देने वाले अल्लाह ही है। तो क्यों ना कि हम तंदुरुस्ती की हालत में, और हम सब चीज़ उम्र में है ना जो हम काम कर रहे हैं, आप लोग ये देखना इंशाल्लाह कि लोग आया करेंगे आप लोगों से मिलने, लोग इस निज़ाम को देखना आया करेंगे, एक वक्त वो आएगा इंशाल्लाह कि लोग इस मदरसे को पूछते आया करेंगे कि यार वो मदरसा काम है। इस मदरसे का जो निज़ाम है ना वो बाकी मदरसों से बिल्कुल अलग है, और ये मदरसे को चलाने वाले आप सब लोग हैं, क्योंकि मदरसा जो चल रहा है आप लोगों को खुद उसका इखलास पे चल रहा है, वरना हम लोग जो ना हाफिज है ना आलिम है ना कारी है, और इतना बड़ा निज़ाम लेके चल रहे हैं। आस पास के किसी मदरसे में नहीं दिखा सकते 203 बच्चे, आस पास के बड़े से बड़े मदरसे में 9 बजे से इधर किसी मदरसे में इतने बच्चे नहीं हैं। और हम कितने कमज़ोर से लोग हैं, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 8,000 की कर रहा है, कोई बेरोजगारी है, लेकिन फिक्रें ले रखी है कि इंशाल्लाह इस काम को करेंगे, और ये काम फिक्रों का है। जो जितनी फिक्र लेगा अल्लाह उसको उतने इस काम को लेंगे। तो भाई मेरी आप सबसे आजिज़ाना दरख्वास्त ये है कि मीटिंग के दिन हर कोई अपने वक्त पर आए। हर बार ये होता है कि हम मीटिंग करते हैं 8 बजे, शुरू होती है वो 9 बजे, हर बार ये होता है, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, और इसीलिए हम बात शुरू नहीं करते। जैसे कि अब ये रसीद मिल गई, रसीद तो हमने पढ़वाया है, अगर ये सब वक्त आ जाते तो 8 बजे रसीद पढ़वा देते, इसलिए नहीं पढ़वाया कि वरना जो बाद में आने वाले लोगों ने पता नहीं चलेगा हुआ क्या। तो मेरी आप सबसे आजीज़ाना दरख्वास्त है कि आप लोग वक्त पर आया करें, और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कल क़यामत के दिन जो हिसाब किताब होगा, तो आप लोग दुआएं देंगे कि यार नाज़िम भाई दुनिया में तो हमें लगता था कि यार तुमने परेशान कर रखा, जब देखो मीटिंग है, जब देखो कोई पैसे इकट्ठे करने हैं, जब देखो ये करना, लेकिन इंशाल्लाह उस दिन आप लोग हैं ना मेरा शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि ये जो काम है ये हम सबका काम है। जितना मेरा है उतना नवाज भाई का है, उतना तारिक भाई का, सबका बराबर का काम है। और जो जितनी फिक्र लेगा अल्लाह उतने ही उससे काम लेंगे। और जब लोग दीन की मेहनत करते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को उनके कामों में लगा देते हैं, उनके कामों में फरिश्ते उनकी मददें करते हैं, तो उनकी बड़ी मुश्किलों को अल्लाह छोटी कर देता है, उनकी बड़ी परेशानियों को छोटी कर देता है। तो आइंदा आज हाथ उठा के बताओ कौन कौन वक्त आएगा आज। मैं तो इंशाल्लाह वक्त आऊँगा हमेशा, और जब भी हमने मीटिंग का वक्त रखा ना, मैं जयपुर भी रहा ना 7 तारीख वाली मीटिंग में, मैं जयपुर में सिर्फ इस काम के लिए आया, मीटिंग में